Today we are going to discuss offenses against state. राज्य के विरुद्ध अपराध. Just to recall, please let me know again what are offenses. How do you describe an offense? I had a discussion already. कोई बताए मुझे अपराध क्या है? Anything which is punishable by law is called offense. Very good. This time, the very first answer is correct. Very good. Anything which is punishable by law. So do not use the word prohibited by law, against human right, other things. You can write it maybe when there is a subjective question. But to begin with, it is anything which is punishable by law. That is an offense. भी बात जो विधि द्वारा दंडनीय है, विधि जिसको दंड देती है. विधि का मतलब यहाँ विधि का मतलब है, यहाँ विधि का क्या मतलब है? कौन बनाएगा इस विधि को? Who will make this law so that things become punishable? Has the power to make this law? Legislature. Very good, very good. Only legislature, no other. Legislature, when we say legislature, so we mean central legislature is parliament. केंद्रीय विधायिका है संसद जो दिल्ली में है. एंड सेकेंड इज द स्टेट लेजिस्लेचर्स, राज्य विधायिका. सो बिहार लेजिस्लेचर, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर, झारखंड लेजिस्लेचर, मणिपुर लेजिस्लेचर, दिल्ली इज ऑल्सो एनसीआर. इन एनसीआर दिल्ली इज देयर, बट दैट हैज ऑल्सो ए लेजिस्लेचर, दैट इज स्पेशल स्टेटस. तमिलनाडु हैज ए लेजिस्लेचर, कर्नाटका हैज ए लेजिस्लेचर. So offenses can be created through legislation only, and only these two entities can declare something as offense and no other entities. Now the topic is offenses against state. So the first curiosity is that offenses are always against state. Why a special chapter on offenses against state? Generally say the difference between tort and crime is that tort is against a person and offense is against state. I think many of you or all of you must have gone through this particular difference. ये अपराध और अपकृत्य, tort को हिंदी में अपकृत्य कहते हैं, दुष्कृति भी कहते हैं कहीं कहीं. इन दोनों में यह अंतर है कि जो दुष्कृति है, अपकृत्य है, टॉर्ट है, आदमी के अगेंस्ट में होता है, राज्य के विरुद्ध नहीं होता है. और अपराध जो होता है वो राज्य के विरुद्ध होता है. एंड देयरफॉर इन कंसिक्वेंस, in cases of offense, one party is essentially state in most of the cases. While in tort case, it is individual. Anurag Deep versus A versus Anurag Deep. But if it is offense, then it will be Anurag Deep versus Uttar Pradesh, Anurag Deep versus Union of India, Anurag Deep versus Bihar, Anurag Deep versus Jharkhand, Anurag Deep versus Tamil Nadu, Anurag Deep versus Odisha. Why? Why state? Because it is offenses are against state. So murder is also offense against state. Theft is also offense against state. What is this offense? Special chapter of offenses against state. This is the first curiosity. And this curiosity very genuine. Are the offenses against state? Yes. The answer is yes. All offenses, most of the offenses are against state. Therefore, state is an essential party. And it's the prosecution that files the case and that fights the case on behalf of the victim. Even if I am a victim, मेरे मोबाइल को चोरी लेके भाग गया, उसको पकड़ा गया, तो जो केस चलेगा मैं नहीं चलाऊंगा, स्टेट चलाएगा.
मैं इसमें रहूंगा विक्टिम के रूप में, लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं होता। टॉर्ट में तो मुझे ही चलाना है केस। तो ये अलग कैसे है? ये अलग ऐसे है कि देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस डायरेक्टली चैलेंजेस द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट के ऊपर हमला दो प्रकार से होता है। देयर आर टू वेज टू अटैक स्टेट, indirectly and directly. So when you kill a person, you indirectly threaten the state. The mobile phone or snatch the chain of someone, you indirectly threaten the state, go against state. Rape is committed, even robbery is committed, even forgery is committed. All indirectly threaten the state. Indirectly, underline the word. But then there are certain offenses directly threaten the existence of state, authority of state. कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को चुनौती देते हैं। चोरी, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, मारपीट वगैरह वगैरह। पर कुछ ऐसे होते हैं जो राज्य को डायरेक्टली थ्रेट करते हैं। राज्य को डायरेक्टली थ्रेट करते हैं, जिसमें कि टारगेट है, मेन टारगेट स्टेट है। वैसे स्टेट की एग्जिस्टेंस को ही चुनौती देते हैं देर, तो उनके लिए अलग से चैप्टर बनाया गया है और इसलिए ये चैप्टर अलग है। Like previous day, anybody can ask any question anytime. Don't wait for last. If you have anything, ask. So the first is the nomenclature that we need to understand. ये जो offenses against state है, how is this different from other chapter? My first question to everyone. बताइए, ये जो चैप्टर है offenses against state है, मर्डर भी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, लूट भी है, डकैती भी है, बहुत सीरियस है। They are also offenses against state, but this offenses against state chapter is different from offenses against human body, offenses against property, offenses against women. What is the difference? Difference is they indirectly threaten, but in this case you do not indirectly threaten the state, you directly threat the state. This is the first difference. Second difference is that when you directly threat the state, many times it is supported by outside agencies, maybe outside country. Take example of one of the neighbor country, Pakistan, always keeps on interfering in our affairs by morally and violently both. So the terrorists come, they attack state, they are supported by outside agencies like Pakistan. Or if not supported by outside agency like Pakistan, but there are other people who are outside. Take example of certain citizens of Canada. वहां से बैठे बैठे कह रहे हैं कि पंजाब को अलग करना है, हमला कर देंगे, बम से उड़ा देंगे। एक बार कहा था उन्होंने कि जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो इस दिन को जो है सेफ नहीं है, यात्रा मत करिए, धमकी दिया सीधा सीधा।
बाहर से धमकी देते हैं, उसमें जो स्टेट है उनको चुपचाप रह जाता है, दूसरा कुछ नहीं करता। बाहर का स्टेट जैसे कनाडा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो दूसरा डिफरेंस हो गया, नोट करते चले आप। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि डायरेक्टली थ्रेटन करते हैं, लेकिन इन अदर ऑफेंसेस इट इज इनडायरेक्टली थ्रेटन द स्टेट। ऑफेंसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, ये डायरेक्टली थ्रेटन द स्टेट इज फर्स्ट, एंड सेकेंड, in these offenses outside agencies are also involved in most of the cases। उनको पैसा देते हैं जो लोग इसमें अटैक करने वाले हैं, कंस्पिरेसी करने वाले हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अगर वो अपराध कर लेते हैं तो उनको रहने की जगह देते हैं। दाऊद इब्राहिम जो है हमारे यहाँ अपराध कर दिया 1993 में, उसने बड़ा विस्फोट कराया बम्बई में, सैकड़ों लोग मारे गए, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, माँ पिताजी अपने बच्चे खो दिए, कई बच्चे अपने माँ पिताजी खो दिए। वो पाकिस्तान में शान से बैठा है, उसको पाकिस्तान अपने यहाँ जगह दिए हुए है, सपोर्ट करते हैं वो। ये दूसरा अंतर हो गया। ये दो अंतर हमको ध्यान रखना है जो इसे अन्य ऑफेंसेस से अलग करते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, स्टेट का मतलब यहां आर्टिकल 12 में जो स्टेट है उससे नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट कहा गया है, यहां स्टेट का मतलब ये नहीं है, यहां स्टेट का मतलब पूरे कंट्री से है। ऑफेंसेस अगेंस्ट कंट्री हो गया, आप कंट्री समझ लीजिए इसको, कंट्री और उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। लाल किले पे हमला किया किसी ने, देयर वाज एन अटैक ऑन लाल किला, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट स्टेट। क्योंकि लाल किला पे क्यों हमला किया? वो किसी दिखाना नहीं चाहते, आदमी पे हमला नहीं कर रहे हैं, वो पूरे स्टेट पे हमला कर रहे हैं। 26/11 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बंबई में उन्होंने हमला किया, आतंकवादियों ने ताज होटल पे हमला किया। वो खाली एक सिंबॉलिक हमला है, वो मेन हमला स्टेट पर है। मर्डर तो किया है उन्होंने, इतने लोगों को मारा तो मर्डर का ऑफेंस तो बना ही बना, पर मेनली उनका डायरेक्टली अटैक किया उन्होंने स्टेट पे। अभी अगर आप समाचार सुन रहे होंगे, यस्टरडे वी लॉस्ट 6 of our brave soldiers in Jammu and Kashmir। लास्ट 1 वीक में हमारे सेना के लोगों ने भी 6 टेररिस्ट को मारा है जम्मू कश्मीर में, बट वी हैव ऑल्सो लॉस्ट अराउंड 6 to 8 soldiers, great soldiers। We all are deeply indebted to them। उनके कारण, because of these people we are here breathing freely, because of these people who are on border securing this country against offenses against state, that we are taking our everyday meals peacefully, we are going to school, going back to home, because of these soldiers who are on the border securing our country from the offenders, from the separatists, from the terrorists who are willing to commit offenses against the state, individually, jointly, or by international stakeholders' support. Our great soldiers for their great sacrifices made by them or by their own family. This is offenses against state. If anyone has any question, they can just, I will wait for 30 seconds. Otherwise, I will move to the next part.
There are no questions? Okay, no problem. भारतीय न्याय संहिता. What was the earlier name of Bharatiya Nyaya Sanhita? Was it CRPC? Indian Penal Code. It was not CRPC. It was not Indian Evidence Act. It was Indian Penal Code 1860, 1860. Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. It is in chapter 7, offences against state. Which chapter? Chapter 7. There are 12 sections. Their change is only one section, 152. Otherwise, all the sections of IPC and Bharatiya Nyaya Sanhita are same. Only renumbering has been done. नए नंबर आ गए हैं, लेकिन बाकी कंटेंट वैसा ही है. तो वैसे ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में. वही सिद्धांत लागू होंगे पुलिस वालों के लिए भी, जजेस के लिए भी, प्रिजन ऑफिशियल्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी. कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं बदलाव हुआ है. हाँ, नंबरिंग थोड़ी बदल गई है. नंबर बदल जाता है, हमारे चश्मे का नंबर बदल जाता है, हम अपना मोबाइल भी बदलते हैं, मोबाइल नंबर भी बदल जाता है, कभी कभी घर का नंबर बदल जाता है, हॉस्टल के रूम का नंबर बदल जाता है, हमारे रोल नंबर बदल जाते हैं. इसमें क्या है, हम ध्यान कर लेते हैं. आईपीसी में चैप्टर 6 में है. भारतीय न्याय संहिता में किस चैप्टर में है? किस चैप्टर में है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट? भारतीय न्याय संहिता में किस चैप्टर में है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट? भी बताया है, बताइए जल्दी. 7. बहुत अच्छा, साक्षी, वेरी गुड. ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट. लेकिन आईपीसी में ये ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर 6 में है. अच्छा, एक सवाल और पूछता हूं मैं आपसे. ये ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जो आईपीसी में है चैप्टर 6 में 121 से शुरू करके 130 तक, क्या इसकी जो प्रोविजंस हैं, अभी तो हम लोगों ने सुना है कि आईपीसी हैज बीन रिपील्ड फ्रॉम विच डेट? किस डेट से रिपील हो गई आईपीसी? 1 जुलाई 2020. वेरी गुड. 1 जुलाई 2024 से. क्या 1 जुलाई के बाद भी अभी जो है 9 जुलाई, 20 जुलाई हो जाएगी, 2025 भी आएगा, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, 30 भी आएगा. आप में से कुछ लोग जज बन जाएंगे. आपके पास कोई केस आईपीसी से आ सकता है कि नहीं ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट से? बताइए. आ सकता है. नितिन यादव जी कह रहे हैं आ सकता है. कैसे आ सकता है बताइए, क्यों कह रहे हैं आ सकता है? जब रिपील हो गया है. सर, अगर वो क्राइम 1 जुलाई से पहले कमिट करा गया होगा तो सर उस पर पुराने वाली आईपीसी लागू. वेरी गुड, वेरी गुड नितिन, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा. भाई पहले जो हुआ है ये तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. इफ द ऑफेंस इज कमिटेड प्रायर टू 1 जुलाई 2024, देन तो आपकी कोर्ट में देयर इज ए पॉसिबिलिटी आफ्टर 15 ईयर्स आप जब बड़ी पोजीशन पे जज बन जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कुछ केसेस भारतीय न्याय संहिता से आ जाए चैप्टर 7 से, और कुछ केसेस चैप्टर 6 आईपीसी से आ जाए. व्हाट शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, कोई बात नहीं. 12 सेक्शन अभी है, 12 सेक्शन जो है पहले भी थे आईपीसी में. सब कुछ वैसा ही है. आप देखिए 121 है, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वार और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वार अगेंस्ट गवर्नमेंट. वो 121 ए. नंबरिंग बदल गई है, ठीक है, अच्छी बात है. ए बी सी डी वाला चक्कर खत्म हो गया. नया अमेंडमेंट आएगा तो भारतीय न्याय संहिता में भी यही करना पड़ेगा. सेम हैज टू बी डन. 121 अब हो गया है 147. 148 है, 149 है. एक एक करके वी विल डिस्कस वन बाय वन सेक्शंस.
इस चैप्टर की एक और खास बात है, चैप्टर 6 हो चाहे आईपीसी में, चैप्टर 7 हो भारतीय न्याय संहिता में, इसका एक प्रोविजन ऐसा है, वन प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर which is very controversial, which has been discussed in the media, in the parliament, in the state legislature, a number of times. In the Supreme Court also, many times. One provision, only one provision. Can anyone tell me which was the provision? Sedition. Sedition. साक्षी ने कहा है सेडिशन, उसके पहले भी किसी ने कहा, शायद सुजाता ने कहा, बहुत बढ़िया, सेडिशन, वेरी गुड। देखिए आप, सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन, छठे नंबर पर जो ऑफेंस है 124A, 1 2 3 4 5 ही तो हमने क्लास, हमने तो नंबर ही उसको याद नहीं रखना है, बस सेक्शन 124A सेडिशन, इसकी हिंदी क्या होती है? सेडिशन की हिंदी कोई बताएंगे? कौन बताएंगे आप में से सेडिशन की हिंदी? देशद्रोह। देशद्रोह कौन कह रही है? और का मतलब सही नहीं आया है। सेडिशन की हिंदी क्या है लॉ में? राजद्रोह। सुजाता कह रही है राजद्रोह, वेरी गुड, राजद्रोह सही हिंदी है। कि राजद्रोह 124 कैपिटल, ये बहुत डिस्प्यूट में रहा, ये बहुत ज़्यादा, और इसीलिए सरकार ने इसमें चेंज किया, बढ़िया किया, सरकार ने चेंज किया, पार्लियामेंट में उसको ठीक करा है, बदल गया, ठीक है, डिस्कस करेंगे। सेक्शन 147, करस्पॉन्डिंग सेक्शन आईपीसी में है 121, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वार और एबेटिंग वेजिंग ऑफ वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, युद्ध करना, सरकार के खिलाफ युद्ध करना, अपनी सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ युद्ध करना, या अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट को कहते हैं इनकोएट ऑफेंस। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकोएट? कोएट का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? कौन से ऑफेंस को इनकोएट कहते हैं? किसी कोई आइडिया है? हाँ नितिन बताइए। नो सर, नहीं है, अच्छा कोई और ट्राई करे। जिन्होंने क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया है उनको बताना चाहिए। रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स, लर्नेड फैकल्टी मेंबर्स, सबका स्वागत है। सर जो ऑफेंसेस कंप्लीट ना हुए हो उनको इनक्वाइट ऑफेंसेस कहते हैं। ऑफेंसेस कंप्लीट ना हो, ओके ठीक है, अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं होता है इसलिए इनकोइट ऑफेंस है, ठीक है। कोई और रिफाइन करेगा इसको? एनीवन हु वांट्स टू रिफाइन इनकोइट ऑफेंस क्या होते हैं? इनकोएट ऑफेंस का मतलब हुआ जो इनिशियल स्टेज में है, अभी फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, उनको कहते हैं इनकोएट ऑफेंस। हमने प्लान बनाया, ए और बी ने प्लान बनाया कि उसका पर्स लूटेंगे, अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी पर्स लूटा नहीं है, प्लान बनाया है, जिसको कंस्पिरेसी कहते हैं, इनकोएट ऑफेंस है। मैंने कह दिया आपको जाओ जाके उस आदमी की चेन छीन के ले आओ, अभी ऑफेंस नहीं हुआ, अभी मैंने आपको उकसाया है, एबेटमेंट, इनकोएट ऑफेंस। उसी तरह अटेम्प्ट, घर में ताला लगा हुआ है, ताला खोल कर अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं, तब तक पकड़े गए, अभी ऑफेंस नहीं कंप्लीट हुआ, सही बताया किसी ने कि इनकम्प्लीट है, आरंभिक ऑफेंस है। इनका एक ग्रुप अब बना दिया गया, पहले क्या था आईपीसी में अलग अलग था,
अब उनका एक ग्रुप बना दिया गया है, एक ही में डाल दिया गया है, अटेम्प्ट, एबेटमेंट और कंस्पिरेसी, तीनों को एक में डाल दिया गया। तो अब क्या है इसमें 147 ये कहता है वेजिंग, चाहे आप युद्ध करें चाहे उसका प्रयत्न भी करें, इवन इफ यू अटेम्प्ट टू डू इट, आप सक्सेसफुल नहीं हुए कोई बात नहीं है, या आपने एबेटमेंट कर दिया, अटेम्प्ट भी किया या एबेटमेंट किया, केवल किसी को उकसा दिया आपने, चलो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेंगे, वहां से जो है कनाडा से जो आतंकवादी पन्नू है ये बोलता रहता है चलो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेंगे, वहां से उकसाता रहता है हमारे देश के लोगों को, खाली उकसा रहा है, ये भी ऑफेंस हो गया, ये 121 का ऑफेंस हो रहा है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है, whoever wages war against the government of India और attempts to wage, तो फुल ऑफेंस भी है, ऑफेंस फुल अपना कंडक्ट है, जो इनकोइट फॉर्म है वो भी ऑफेंस है, एबेट करता है वो भी ऑफेंस है, शैल बी पनिश्ड विद डेथ, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा, डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता, फाइन भी लगा। उसका एग्जाम्पल दिया है, ए ज्वाइंस एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एक कोई ऐसा कोई काम करता है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप कहते हैं कि हम वायलेंटली उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, वायलेंट तरीके से बम हमला कर देंगे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर को उनको बम से उड़ा देंगे, में अटैक कर देंगे, बॉम्बे में अटैक कर देंगे, किसी साइड में अटैक कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेट करने के लिए, तो ये इंसरेक्शन हो गया, तो ये ऑफेंस हो गया। यहां पर ये ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। इसमें एक्चुअली सारे ही ऑफेंस पहले भी कॉग्निजेबल थे, चैप्टर 7 के सारे ऑफेंस पहले भी कॉग्निजेबल थे, अब भी कॉग्निजेबल है, पहले भी नॉन बेलेबल थे, अब भी नॉन बेलेबल है। एक बार समझना है कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल क्या है। कोई बताएंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या माने है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब है, कोई जानते हैं? सीआरपीसी में है, पता नहीं आप में से किसी सीआरपीसी भी पढ़ी है कि नहीं। एनीवन? कॉग्निजेबल का मतलब है ये थोड़ा सीरियस अपराध होते हैं, इसको हम अगर इफ वी टॉक इन कॉमन मैन्स टर्म, पर लीगल टर्म में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस फॉर विच police can arrest without warrant, and as per Lalita Kumari judgment 2014 constitutional bench judgment Supreme Court, it is mandatory to register an FIR. BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी ने थोड़ा सा चेंज किया है उसमें कॉग्निजेबल हो गया। विदाउट वारंट पुलिस कैन अरेस्ट। नॉन बेलेबल का क्या मतलब है? नॉन बेलेबल का मतलब नहीं कि बेल नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल का मतलब है बेल के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, देन कोर्ट विल सी एंड डिसाइड, इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। नॉन बेलेबल। बेलेबल का ऑफेंस का मतलब वैसे ऑफेंस जिसमें बेल आपको पुलिस थाने से मिलेगी, इट इज ए मैटर ऑफ राइट। नॉन बेलेबल का मतलब है कि दिस ऑफेंस इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको अपने डिस्क्रिशन पे बेल देगी। सेक्शन 147 के बाद आते हैं 148, करस्पॉन्डिंग सेक्शन आईपीसी का है 121 कैपिटल ए। कंस्पिरेसी, 147 की कंस्पिरेसी।
आप देख सकते हैं कि 147 में कंस्पिरेसी भी क्या है, कंस्पिरेसी भी इनकोएट ऑफेंस है। 147 में इनकोएट ऑफेंस में अटेम्प्ट भी है, एबेटमेंट भी है, लेकिन कंस्पिरेसी नहीं है। उसी को भरने के लिए ये नया ऑफेंस लाया गया था बहुत पहले। उसी को 2023 में कंटिन्यू किया गया है। without and beyond India conspires to commit any offence punishable by section 147, जो भी षड्यंत्र करता है, anyone who conspires, इसके पहले का ऑफेंस करता है, और conspires to overaway by means of criminal force or show of criminal force the central government और any state government, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि उसको हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं, इलेक्शन से नहीं, क्रिमिनल फोर्स से हटा देंगे। तो उसके खिलाफ ये ऑफेंस है, होता है 148। उसमें भी सजा कितनी है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और इम्प्रिजनमेंट है 10 ईयर्स के लिए। उसको दंड भी दिया जाएगा, फाइन भी देना होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? टू कंस्टिट्यूट ए कंस्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof। clearly कह दिया गया है कि ये कंस्पिरेसी के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट कोई काम ही हो, काम होना जरूरी नहीं है। मियर प्लानिंग इज सफिशिएंट। हो गया, ये भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। 9 जो 122 है आईपीसी का, 149 ऑफ इंडियन एविडेंस है, इंडियन भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या है? कलेक्टिंग आर्म्स विथ इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। whoever collects men, arms, ammunition or otherwise prepares to war, wage war। आदमी जो कि करने के लिए, युद्ध छेड़ने के लिए लोगों को जमा करता है, आर्म्स को जमा करता है, एम्यूनिशन को जमा करता है, बारूद वगैरह जमा करता है, या अन्य तरीके से युद्ध का तैयारी करता है। क्या इंटेंशन उनका है? विथ इंटेंशन ऑफ आइदर वेजिंग और बीइंग प्रिपेयर्ड टू वेज वार। लोगों को जमा इसलिए करता है, डेमोक्रेटिक पर्पस से जमा नहीं कर रहा है, कोई आंदोलन करने के लिए जमा नहीं कर रहा। सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करेंगे, चलो पानी नहीं आ रहा, चलो आंदोलन करेंगे, नो। बिजली नहीं आ रही, चलो आंदोलन करेंगे, नहीं, इसके लिए नहीं। किस लिए? आइदर वेजिंग, युद्ध करने के लिए, और वेज वार, बीइंग प्रिपेयर्ड टू वेज वार, सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए लोगों को जमा करता है, आर्म्स जमा करता है, बारूद जमा करता है, किसी और तरीके से प्रिपेयर करता है। तो उसके कैसा इंटेंशन कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक इंटेंशन कहते हैं इसको। सीनियर छात्र हो, ध्यान देंगे, ये जनरल इंटेंट क्राइम नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंटेंट है। क्या स्पेसिफिक इंटेंट है? ये स्पेसिफिक इंटेंट है कि जो व्यक्ति इसमें शामिल है, उसका एक स्पेशल इंटेंशन है। स्पेशल इंटेंशन क्या है? वेजिंग और वेज वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 साल तक की सजा मिलेगी उसे। इज ऑल्सो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। Kindly wait for a second, I mean a minute.
सॉरी, सेक्शन 150, इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 123 आईपीसी। स्लाइड पे आपको दिख रही होगी। कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वार, बाय एनी एक्ट, हुएवर सब पे लागू है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए, कोई भी इसमें अपराधी हो सकता है, कोई भी एक्यूज हो सकता है, बाय एनी एक्ट और बाय इलीगल ओमिशन, कोई ऐसा काम करता है या इलीगल ओमिशन करता है। हम जानते हैं कोई अपराध जब होता है, व्हेन एन ऑफेंस टेक्स प्लेस, देयर आर टू वेज टू डू, वन इज एक्ट, अदर इज ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या है? ओमिशन का मतलब है कि जैसे लीगल ड्यूटी है नहीं करना। ट्रैफिक पुलिस वाले को जो है ड्यूटी है कहीं पर, वो ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पर नहीं खड़ा है, तो इलीगल ओमिशन हो गया। Any act or illegal omission conceals the existence of a design to wage war against the government of India, intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war, shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years or shall also be liable to fine. मान लीजिए कहीं से हमें पता चल गया कि ये 3-4 लोग भारत सरकार के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, हमें जानकारी मिल गई, हमने इसको जानबूझ के छिपा दिया। क्यों छिपा दिया? ताकि उनको फायदा हो, सहायता मिले, जो लोग युद्ध करना चाहते हैं। क्या इस बात को जानते हुए कि ऐसा कंसीलमेंट करना उससे उसको सहायता मिलेगी, तो ऐसे मामले में इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 150 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, एंड आई विल हैव द फाइन ऑफ 10 years, और फाइन भी लगेगा, हाई पनिशमेंट ऑफ 10 years एंड देन फाइन भी लगेगा। ये भी मतलब निकल के आ रहा है कि अगर हमें जानकारी मिल गई है, हमने उसको छिपाया इसलिए नहीं कि उनको सहायता मिले, बल्कि हम घबरा गए, डर गए और जल्दी से कहीं चले गए, चुपचाप रह लिए, तो इस सेक्शन में अपराध नहीं हुआ, किसी और सेक्शन में होगा, बट नॉट इन दिस सेक्शन। उस व्यक्ति को अपराधी या अभियुक्त बनाता है जो जानबूझकर ऐसा इसलिए करता है, छिपाता है कि किसी दूसरे को हेल्प मिले उससे। अब 152, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन। 152 was earlier 124A, capital A, sedition, राजद्रोह. This is now 152. और नाम उसका बदल के कर दिया गया, सेडिशन नाम को हटाकर कर दिया गया एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेडिशन का मतलब था राजद्रोह, अब इसको कह दिया गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ अपराध। नोमेनकल्चर थोड़ा चेंज किया है, स्पिरिट तो वही है, नोमेनकल्चर चेंज है। ये 152 है। ये कहना शुरू कर दिए हैं कि सेडिशन राजद्रोह था और 152 अब देशद्रोह हो गया है, राज्य को हटा के देश कर दिया गया है। आप भी कह सकते हैं हाँ पहले राजद्रोह था, अब ये देशद्रोह जैसा हो गया।
अब इसमें 152 में क्या है, उसके पहले 124A में क्या था ये देख लेते हैं। सेक्शन 124A सेडिशन। Whoever by words, मैं जो है कोई बात कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कार्टून बना सकता हूँ, और भी तरीके हो सकते हैं। तो मैंने कोई बात एक्सप्रेस की, पहला एलिमेंट क्या हो गया, एक्सप्रेस करना, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। और फिर क्या किया, हमारे एक्सप्रेशन से, हमारे बोलने से, हमारे लिखने से क्या होता है, हेट्रेड होती है, घृणा फैलती है, कंटेम्प्ट होता है, मान होता है, या डिसअफेक्शन होता है। डिसअफेक्शन माने समथिंग अगेंस्ट लव। ये तीन चीजें होती हैं, तीन में से कोई एक चीज, या तो हेट्रेड हो, या कंटेम्प्ट हो, या डिसअफेक्शन हो। अगर ऐसा होता है, किसके खिलाफ होता है, गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या उनकी रिप्रेजेंटेटिव हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फाइन ऐड किया जाएगा, या 3 इयर्स तक का ही पनिशमेंट है। नॉन सीरियस, लेस सीरियस केस में 3 इयर्स तक का पनिशमेंट है, और विथ फाइन भी है लास्ट में, मतलब केवल और केवल फाइन भी हो सकता था पहले। इसमें 3 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या था, डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ इनिमिटी। डिसअफेक्शन है, डिसअफेक्शन का माने बता दिया गया है। डिसअफेक्शन में क्या क्या शामिल है, डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ इनिमिटी, दुश्मनी का कोई भी भाव है हमारा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन और थर्ड एक्सप्लेनेशन को एक साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि लगभग एक है, थोड़ा सा फर्क है। सेकेंड कहता है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोवेशन। डिसअप्रोवेशन का मतलब क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल, डिसअप्रोवेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कुछ करना चाहती है, कोई स्कीम है, कोई पॉलिसी है, कोई कानून है, कुछ और करना चाहती है, उसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं और चेंज के लिए आप लॉफुल तरीके का इस्तेमाल करते हैं। कह दिया गया भाई हम यहां पर जुलूस निकालेंगे, जुलूस निकालने की परमिशन दीजिए, परमिशन मिल गई, आप जुलूस निकालिए, आप विरोध करिए, कोई बात नहीं। करने का अधिकार आपको है, ये एक्सप्रेशन 2 और 3 में यही बात कही गई है। व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है और सरकार का विरोध भी कर सकता है वो। 2 और 3 में ही बात कही गई है, पर विरोध करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ही इज नॉट टू एक्साइट द हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, समथिंग दैट क्रिएट्स हेट्रेड अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट में हेट्रेड क्रिएट हो जाए, स्टेट के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट क्रिएट हो जाए या डिसअफेक्शन क्रिएट हो जाए। बाकी पूरी चीजें आप जो है जिससे आलोचना करना चाहते हैं वैसे आलोचना करिए। क्रिटिसिज्म का स्वागत है, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। 124 कैपिटल ए में देयर आर मेनी पीपुल हु फील क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है, अलाउड है। पुलिस ऑफिसर्स एंड समटाइम्स जजेस ऑल्सो read it wrongly। अब इसमें 2-3 दिक्कतें थी। एक तो लिख दिया था गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो क्या हुआ
हमेशा ही लगता था कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात कह रहे हैं तो सेडिशन होगा, उसका दुरुपयोग होता था और कई एफआईआर दर्ज भी हुए। मेंसरिया एलिमेंट नहीं है, ध्यान से देखिए आप, शायद ही कोई मेंसरिया एलिमेंट डायरेक्टली दिख रहा हो। तो मेंसरिया एलिमेंट नहीं होने से बड़ा दुरुपयोग हो रहा था। एक तो गवर्नमेंट होने का, जो व्यक्ति गवर्नमेंट में है उसने कुछ कह दिया, उसके खिलाफ कोई बात कह दी गई तो लोग सोचे कह रहे ये तो इसके गवर्नमेंट के खिलाफ बात किया, एफआईआर दर्ज करो, चलो चलो एफआईआर दर्ज करो। गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना अलाउड है, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नॉन वायलेंट नहीं रहना है, आपको नॉन वायलेंट रहना है, आपको पीसफुल रहना है। अगर आप वायलेंट हो जाते हैं, पीसफुल नहीं रहते, तो सेडिशन लॉ जो था वो आपका गला पकड़ता था। अब देखिए सेक्शन 152 में क्या आ गया है। हमने बताया कि टाइटल चेंज करके कर दिया गया एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात अगर की जा रही है तो ये अपराध है। तो देशद्रोह हो गया, राजद्रोह हट के देशद्रोह हो गया। सरकार के खिलाफ कुछ बोलते थे आप, वो पहले भी गड़बड़ अपराध नहीं था, ध्यान रखिए, पहले भी अपराध नहीं था, वो केवल हमारा भ्रम था। इट वॉज जस्ट ए confusion that we cannot criticize chief minister, prime minister. We can criticize the judges also. We can do it. The limit cannot be changed. देखिए क्या चेंज किया गया है 152 में। पहला चेंज है क्या, मेंसरिया एलिमेंट डाल दिया है, whoever purposely or knowingly, जानबूझ के कोई बात कहता है, अनजाने में कह दिया, जोश में आके कह दिया तो नहीं माना जाएगा। जानबूझ के कोई बात कहना चाहिए। क्या कहते, क्या एक्सप्रेस करता है अपने को, कैसे एक्सप्रेस करता है, वही तरीका, बोल करके, लिख करके, साइन करके। लेकिन इसमें एक चीज डाल दी गई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हम अपनी बात को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी कह सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कह दिए, फेसबुक के माध्यम से कह दिए। तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो 19वीं सेंचुरी में नहीं था, वो आ गया अब बहुत ज़्यादा है। तो सोशल मीडिया शायद ही किसी के पास हो जो नहीं हो, तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डाल दिया गया। और क्या, बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। तो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो धनी लोग हैं पर दूसरे देश या आतंकवादियों का साथ देना चाह रहे हैं। वो क्या करते हैं, केवल पैसे से सहायता करते हैं। एक ऑफेंस बना दिया गया है। एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट, ये तो पहले से था ही। क्या एक्साइट करें, वहां पर था क्या क्या था, कंटेम्प्ट, हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन। इसको बदल दिया गया, कह दिया सेसेशन। सेसेशन माने ये कहना कि भारत का एक हिस्सा जो है वो दूसरे देश का है, ये सेसेशन हो गया। सेसेशन, अगर सेसेशन करते हैं, अगर कोई बात कहते हैं जिससे सेसेशन होता है, सेसेशन तो डिस्क्राइब्ड भी है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सेसेशन वर्ड को डिफाइन किया गया है। आर्म्ड रेबेलियन, ऐसी कोई बात कहते हैं जो आर्म्ड रेबेलियन को लीड करता है। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब हो गया सशस्त्र विद्रोह। हमारे आर्मी के लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसा देते हैं लिख करके, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, फेसबुक पे लिख देते हैं, आर्मी के लोगों की विद्रोह कर दीजिए आप। ये हम इसके लिए दोषी हो सकते हैं। और सबवर्सिव एक्टिविटीज, तोड़ फोड़ की एक्टिविटी, ये कानून लागू होगा। और इनकरेज फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, हम खुद ही सेपरेटिज्म तो नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही
फाइनेंशियल मीन्स से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सॉवरेनिटी को खुद एंडेंजर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकरेज कर रहे हैं फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी। अलग होने की जो टेंडेंसी है उसको हम याद कर रहे हैं, फीलिंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे में है, इनकरेज कर रहे हैं उसको, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी। तो अगर हम उसको इनकरेज करते हैं फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को, और क्या है, इंडेंजर सोवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता अखंडता को इंडेंजर करता है, खतरे में डालता है, और इंडल्जेस इन और कमिट्स एनी सच एक्ट, कोई भी ऐसा काम करते हैं तो मेरी सजा क्या होगी, 5 साल की होगी, और वो 7 साल की भी हो सकती, सॉरी, मेरी सजा क्या होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, जीवन भर के लिए कारावास, या 7 साल तक भी हो सकती है। कम से कम सजा कितनी होगी, 7 साल तक की सजा हो सकती है। 7 साल लिखा है तो कम से कम तो और भी कम हो सकती है। विथ इम्प्रिजनमेंट तो नॉन सीरियस केस है, 1 साल 2 साल की भी सजा हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, और 7 साल तक की भी हो सकती है, और 7 के बाद सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर आप 124 कैपिटल ए देखेंगे तो पहले क्या सजा थी, पहले सजा जो है बहुत ही पहली सबसे कम सजा थी फाइन, केवल फाइन होकर छूट सकते थे। बता दिया कि भाई सीरियस ऑफेंस है, केवल फाइन क्यों करेंगे, कुछ दिन जेल में रहो। और दूसरा 3 साल तक की सजा, 3 साल तक की सजा है, और 3 के बाद सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब अगर आप किसी को जज बन गया और चाह रहे हैं कि यार इसको 5 साल सजा दो, तो 5 साल सजा नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि 3 साल की सजा थी, उसके बाद सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट था। अब 7 साल तक की सजा है, 7 साल तक दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पहले लगा दिया गया है, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोवेशन, डिसअप्रोवेशन डिसअप्रूवल ऑफ मेजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन बाय गवर्नमेंट। सरकार ने जो कार्रवाई की है किसी भी तरह की, कोई पॉलिसी है, कोई कानून बनाया, उसमें अगर आप अपना डिसअप्रूवल दे रहे हैं, अपना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अपना विरोध कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, करिए। यदि आपका उद्देश्य लॉफुल तरीके से इस कानून को स्थापित करना है, या उसकी कमी को बताना है, या उसकी जो नीति है, जो सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई स्कीम बनाया है, उसकी कमी को बताकर उसको सुधार करना है, तब तो ठीक है। और अगर आप खाली जो है बस इस तरह का ऐसे ही परेशान करने के लिए करते हैं, आप केवल सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, आर्म्ड रेबेलियन करना चाहते हैं, सेसेशन करना चाहते हैं, ऐसी भावना को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो, ये चीज अपराध है। वरना आप आलोचना कर सकते हैं, जितने चाहे आलोचना कर सकते हैं, कोई रोका नहीं गया है। नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस है। ये सेडिशन का जो अपराध है, पहले उसमें कर दी गई। एक तो आप देखेंगे इसमें मेंसरिया एलिमेंट डाल दिया गया, पर्पसली और नोइंगली। ये अच्छी बात हो गई, इससे मिसयूज का चांस कम हो गया है। चांसेस ऑफ मिसयूज हैज बीन ग्रॉसली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ मेंसरिया एलिमेंट, पर्पसली और नोइंगली। सेकेंडली, in section 124A, it was against the government established by law in India। तो कंफ्यूजन हो जाता था, मैंने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कह दिया, मैंने चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में कह दिया, तो क्या अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कौन है? चीफ मिनिस्टर। अच्छा चलो जेल में भरो उसको, जेल में बंद करो। अब कह दिया गया है नो, क्या करेंगे आप? सेसेशन कराएंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे तो आर्म्ड रिबेलियन कराएंगे, सबवर्सिव एक्टिविटीज ऐसा कराते हैं। अब या कोई फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, दूसरे के अंदर फीलिंग ऐसा भर रहे हैं, या सॉवरेनिटी को खतरे में डाल रहे हैं, तभी ये होगा, और मामले में नहीं होगा। तो बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि जो वर्ड थे ना
disaffection, contempt, hatred, ये बड़े बड़े ही जो है वेग वर्ड थे. They were not very clear words. Secession word is clear. Armed rebellion is clear. However, the words used are subversive activities and in feelings of separatist activities. ये थोड़ा सा अलर्ट होके पुलिस अधिकारियों को, जजेस को बहुत अलर्ट होके काम करना चाहिए. इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. सबवर्सिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि तोड़फोड़ वाली एक्टिविटी, पर ये हर तरह की तोड़फोड़ इसमें शामिल नहीं होगी. केवल वही तोड़फोड़ शामिल होगी जो बहुत ही सीरियस नेचर की है और उसको एक स्पेशल उद्देश्य से किया गया है. तो ये हम देखते हैं कि इसके 152 है, इसका दुरुपयोग, द मिसयूज, चांसेस ऑफ मिसयूज लाइकली टू बी रिड्यूस्ड. 124A पे जो लास्ट केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दिया था 1962 में इन द केस ऑफ केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. Bihar, the constitutional validity of 124A and section 505 of IPC both has been challenged, and the Supreme Court said that there is another element that we need to incorporate. What is that element? That is a tendency of violence or disorder. You must have a tendency of violence or disorder, then it will amount to offence under section 124A. बाद में 2023 में the Supreme Court has made a virtual stay on this provision 124A कैपिटल A. इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चलेगी ये लिखकर भेज दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया क्योंकि इस लॉ का मिसयूज हो रहा है. तो मिसयूज तो बहुत चीज का हो रहा है, तो क्या सबको रोक देंगे आप? नहीं, कोई बात नहीं है. गवर्नमेंट ने इसे रोक दिया है. अभी ये सेक्शन को लागू नहीं था. 31 जुलाई के पहले भी ये सेक्शन लागू नहीं था, एग्जिस्ट कर रहा था. इक्लिप्स लग गया था, समझ लीजिए आप. आपको जान के आश्चर्य होगा, व्हेन अरुण जेटली ही वाज ए बीजेपी मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, criticism on Facebook on appointment of judges in the Supreme Court. Then a judicial officer has registered a case against him under 124A, which was later on quashed by the High Court of Allahabad. कई मिसयूज इससे लॉ के हुए हैं. नया लॉ आ रहा है, देयर आर चांसेस दैट आ गया है, मतलब कि इनका मिसयूज कम होगा. वाई? फर्स्ट रीजन इज मेंसरिया वर्ड इज यूज्ड. सेकेंड रीजन इज गवर्नमेंट ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हटा दिया गया है, दिस हैज बीन रिमूव्ड. एंड इंस्टेड ऑफ दिस सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, इंडेंजर सॉवरेनिटी, ये सब डाल दिया गया है. तो ये हो गया है अब राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह. अब क्या, अब जो है देशद्रोह हो गया. पहले अब केवल राजद्रोह नहीं था. राज मतलब राजा, राजद्रोह मतलब राजा के खिलाफ द्रोह या राज्य के खिलाफ द्रोह. केवल राज्य के खिलाफ द्रोह नहीं है, इट हैज टर्न इनटू देशद्रोह. बट देन देयर आर सर्टेन वर्ड्स which can be abused, that is subversive activities. This word the police has to be very alert. Feelings of separatist activities बहुत वेग टर्म है, इसको ठीक से यूज करना चाहिए. Before we go further, अंदर भारतीय
अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देयर इज ए प्रोविजन which is relevant, which many people do not know, but you should know because you are attending this series of lectures. So you know this, but many people, even many teachers do not know, many lawyers do not know, many judges do not know this provision. That section 197. Oh, sorry. This is no, very sorry. This is correct. It is on. It is on Bharatiya Nyaya Sanhita 197. That under 197 also of Bharatiya Nyaya Sanhita, a new provision has been added to deal with national security. That if anyone says something or sends something on WhatsApp और फेसबुक, किस लिए? फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, झूठी बात आप भेज रहे हैं, jeopardizing the sovereignty, unity and integrity और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. इंडिया की जो सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी, उसको खतरे में डाल रहे हैं. इस तरह झूठी इंफॉर्मेशन भेज दिया आपने, तो उसके लिए दंड मिलेगा आपको 3 इयर्स तक का पनिशमेंट है. पर फाइन भी केवल पनिशमेंट हो सकता है. ओनली फाइन कैन ऑल्सो बी ए पनिशमेंट. सो व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ऑनलाइन, यूट्यूब पे कुछ गलत जानकारी भेज दिया देश की, कंट्री के बारे में, बाई विच द sovereignty, unity, integrity and security of the country is under threat. 197 clause 1D. National security का मैटर है, therefore I have put it here. It is not a part of that chapter. Now yes, BNSS. दोनों सेक्शन ध्यान रखिए, सेक्शन 152 एंड सेक्शन 197. Some mistake in this. Sorry, just let me correct these mistakes. Now this is the provision of BNSS, not BNS. ध्यान रखिए, BNS में सेक्शन 152 में सेडिशन का न्यू अवतार है, न्यू लॉ ऑन सेडिशन, दैट इज नाउ देशद्रोह, एनी ऑफेंस अगेंस्ट आवर कंट्री, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी. सेक्शन 197 में भी है, इफ यू पास ए र्यूमर, देयर इज ए सिक्योरिटी, लॉ का मिसयूज ना हो, देयरफॉर देयर इज ए सिक्योरिटी अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 127. दिस मेनी पीपल डू नॉट नो. Many judges, many police officers, many teachers, many students, they do not know. You are privileged, you are knowing now. Security of good behavior from persons disseminating certain matters. This clearly says that if there is an executive magistrate, district magistrate is an executive magistrate. There are two types of magistrate, executive magistrate and judicial magistrate. Judicial magistrate come from judiciary, executive magistrate come from civil service exams, IAS, PCS.
executive magistrate, like district magistrate, he receives information. There is one person who is intentionally disseminating information regarding against sovereignty and integrity of our country under 152 या 197. He is sending some information on YouTube or anywhere. क्या करेगा वो? He will issue a show cause notice. Not register an FIR immediately. Not direct to register an FIR. Or not go to the police to register an FIR. But issue him a show cause notice. That why a security of good behavior should not be taken from you. तो क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट है देख लीजिए. There is a person in a particular jurisdiction who is जो देशद्रोह से जुड़ा मटेरियल कहीं पर स्प्रेड कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं यूट्यूब में, या कहीं पर कोई रील बना दिया छोटा सा कंट्री के अगेंस्ट में स्प्रेड कर रहे हैं. तो नाउ देयर आर टू ऑप्शंस. One, to register an FIR under 152 or 197 also sometime. But then there is another option. Before registering an FIR, you can issue a show cause notice to that person. Because it is a matter of free speech. अगर सीरियसली आपने कहा है, अगेंस्ट कंट्री कह रहे हैं, देन इट इज एन ऑफेंस. लेकिन कभी कोई गलती से कह दिया है और देयर इज ए यंग पर्सन, ही इज रेडिकलाइज्ड बाय टेररिस्ट ग्रुप, उसको झूठी इंफॉर्मेशन दे दी है, he is indoctrinated, then in those cases section 127 should be used. Do not register an FIR, but only ask for security for good conduct. This is a way to not use the police machinery. अरेस्ट कर लिया उसको तुरंत, नो. आप उसको शो कोज नोटिस देकर उसको कह सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, ऐसा मत करो नहीं तो फिर तुम्हें जेल में डाल देंगे. दिस प्रोविजन इज देयर. इट वाज ऑलरेडी देयर इन CRPC अंडर 108, बट इट वाज नेवर यूज्ड, हार्डली यूज्ड, और इसलिए मिसयूज होता रहा लॉ का. सेक्शन 153. Section 153 is like 125 of IPC, waging war against government of any foreign state. देखिए, हम जो है, our country does not only secures our own country, बल्कि अगर हमारी कंट्री में कोई दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में भी कोई युद्ध करता है तो हमारे पास एक ऑप्शन है. we are so peaceful, so loving. This section shows हमारा इंटरनेशनल लेवल पर कितना अच्छा कमिटमेंट है कि फॉरेन कंट्री का भी कोई, अगर हमारी कंट्री में कोई चाहता है कनाडा के अगेंस्ट में कोई बात करता है, अमेरिका के सॉवरेनिटी अगेंस्ट कोई बात करेगा, 153 विल बी एप्लीकेबल. कनाडा में आप देख रहे हैं, कनाडा में हमारे कंट्री के अगेंस्ट में इतनी बात कही जा रही है, दे आर डूइंग नथिंग. हमारे यहाँ कोई करेगा अगर एनीथिंग अगेंस्ट फॉरेन स्टेट इन आवर कंट्री, कहेगा का मतलब कहने से नहीं, क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं. वेजिंग वार, युद्ध करते हैं आप, तो इसके लिए सेक्शन 153 लागू हो जाएगा. Then another provision is again regarding foreign state. दूसरी कंट्री है, उसके बारे में वे वार वेज करते हैं. 154 punishes that. Receiving property taken by war. प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हैं, किसी ने हमें पैसे दे दिए इस काम को करने के, या कोई और चीज दी है. सो इन दोज केसेस सेक्शन 155 कम्स इन पिक्चर.
लो प्रॉपर्टी लो और भारत पे हमला करो। ऐसा कई लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म में ऐसा हो रहा है। तो ऐसे मामलों के लिए सेक्शन 155 लागू है। जब 153, 154 के कंटेक्स्ट में कोई प्रॉपर्टी हमको मिलती है, वो क्या देता है कि आपको इनाम देंगे, ये प्रॉपर्टी ले लो और फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट पे ये काम करो। तो हमारी कंट्री देखिए कितनी अच्छी कंट्री है हमारी। हम लोग फॉरेन अपनी कंट्री की नहीं सिक्योरिटी कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री की भी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो कभी कभी यूनाइटेड नेशन या फॉरेन के लोग हमें शिक्षा देने लगते हैं। उनको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, उनको ये देखना चाहिए कि हमारे कंट्री में बहुत अच्छे प्रोविज़न है। हम जो है सभी कंट्री को साथ लेके चलना चाहते हैं, यहाँ तक कि वी हैव द प्रोविजंस टू सिक्योर अदर कंट्री ऑल्सो, विच इज नॉट देयर एनीवेयर। 156 पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वार टू एस्केप। पब्लिक सर्वेंट कोई पुलिस अधिकारी है, कोई और सरकार का अधिकारी है, जो प्रिजनर ऑफ स्टेट और प्रिजनर ऑफ वार है, युद्ध के दौरान कोई प्रिजनर पकड़ा गया है, उसको भागने में हेल्प करता है। तो पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, लाइफ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। ये सब था क्योंकि हमारे जो सेनानी थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और फ्रीडम फाइटर्स, वो उनको भागने में हमारे लोग हेल्प करते थे, इसलिए प्रावधान किया गया था। बट उसको अभी भी इसलिए रखा गया है कि सम टाइम, बिकॉज इफ ए टेररिस्ट इज देयर इन ए जेल, there is a possibility that there is some public servant who may be sympathetic to him, and therefore that public servant can help him. In those cases, this provision will come in picture, 156 will come in picture. Then 157 deals with public servant negligently suffering. नेग्लिजेंटली ऐसा करता है, जानबूझ के तो नहीं करता है। नेग्लिजेंटली तो देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर, लेकिन वो सो गया और प्रिजनर भाग गया, तो ऐसे में सेक्शन 157 कम्स इन पिक्चर। 158 एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बोरिंग सच प्रिजनर। ऐसा जो प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वार है और स्टेट प्रिजनर कोई है, तो उसको भागने में हेल्प करता है। तो ऐसे मामलों में, या उसको हार्बर करता है, हार्बर का मतलब अपने घर में छिपाता है या उसको कहीं छिपा के रखता है, तो ऐसे मामले में दिस सेक्शन 158 कम्स इन पिक्चर। So this is how all section is under this. I have covered this part of section 147 to 158. Now I will discuss provisions under different chapter, that is offenses against public tranquility. जानते हैं अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, कोई ऐसा अपराध जिससे शांति भंग हो जाती है, अलग चैप्टर बना दिया गया है। ये चैप्टर 11 में है भारतीय न्याय संहिता में। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 189 से शुरू करके 197 तक है। इसको डिस्कस करेंगे। पहले ये आईपीसी में चैप्टर 8 था और लंबा चैप्टर था, 141 से शुरू करके 160 तक, बड़ा लंबा चैप्टर था। उसको नई जो भारतीय न्याय संहिता है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड
sections have been merged. So therefore अब छोटा हो गया है चैप्टर. आईपीसी में सेक्शन 141 to 160 was a number of various sections were there, but it has been reduced. Now it is condensed to section 189 to 197. First is unlawful assembly. That is very important. Unlawful assembly means, see, assembly is permissible. Assembly is permissible. Indeed, assembly is a part of fundamental right. Can anyone tell me under which article right to assembly is a fundamental right? Under which article of the Constitution right to assembly is a fundamental right? The right to freedom. Under which article? Article 19, 20, 21, 22. I am giving 4 options. Article 19. Very good, Hanspreet Kaur. Article 19. Article 19 has 6 clauses. So right to assembly is a fundamental right. But right to assembly is a fundamental right means for lawful purpose, not for unlawful purpose. हम जमा हुए हैं, बर्थडे पार्टी करेंगे, ठीक है. जमा हुए हैं, शादी में जाएंगे. जमा हुए हैं घूमने फिरने के लिए, कोई बात नहीं. पर हम जमा हुए हैं, सड़क पे जाम कर दिया. वी हैव मेड चक्का जाम. नो, it is unlawful assembly. Of course, it is democratic right to protest, but then you have to take permission. If you do it without permission, it becomes an unlawful assembly. It can be a unlawful assembly. So unlawful assembly, there are 5 ingredients of 5 type of system which makes this assembly unlawful assembly. First is there must be at least 5 persons. 2 persons, 3 persons will not make unlawful assembly. They will be treated under different chapter. At least 5 persons should be there. 5 or more, 6, 7, 8, 9, 10. And they must have common object. There must be 5 persons and they must have a common object. And what is the common object? It is no guess. It is already written. Written under 189. It was previously under 141 of IPC. 141 of IPC. What are those 5 things? If you overweigh by criminal force, show of force, central government, state government, parliament, legislature, public servant, आप क्रिमिनल फोर्स लगाते हैं, उसको शो करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, तो ये अनलॉफुल असेंबली बना देगा. दूसरा क्या है? रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस. लॉ है, लॉ को आप लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं, या कोई ऑर्डर है सरकार का, वैलिड ऑर्डर है, उसको लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं और 5 लोग हैं रोक रहे हैं इसको, तो ये भी कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया. दिस इज ऑल्सो कॉमन ऑब्जेक्ट. और अगर 5 लोग हो गए, देन दैट असेंबली कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए अनलॉफुल असेंबली. कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास. कोई आप मिसचीफ करते हैं, मिसचीफ का मतलब वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यू रिड्यूस. आपने स्क्रैच लगा दिया एक कार में, स्कूटर में, मेरी पेंसिल तोड़ दी, पेन जो है आपने किसी की उसमें उसको उसकी नीब तोड़ दी, उसका ढक्कन फेंक दिया, मिसचीफ कर दिया आपने. क्रिमिनल ट्रेसपास, विदाउट परमिशन किसी के जुरिडिक्शन में, किसी के घर, किसी के शॉप गए आप, इंटेंशनली क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, या अदर ऑफेंसेस.
ऐसा करते हैं, ये भी कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है? मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑफ क्रिमिनल शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टेक पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती आप ले लेते हैं क्रिमिनल फोर्स का यूज करके। हाँ, अपना बंदूक लेकर पहुंच गए, डंडा लाठी लेकर पहुंच गए, चलो भाई इस जमीन पे कब्जा कर लो, चाहे सरकार की जमीन है चाहे किसी की जमीन है, आपने कब्जा कर लिया, तो ये भी कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया। 5 लोग हैं तो अनलॉफुल असेंबली हो गई। या कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जाने का उसको हक है और आप जानबूझ के उसको रोक देते हैं, स्टॉप देम, डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ राइट टू वे, राइट ऑफ वे, उस रास्ते से जाने से आप रोकते हैं, पानी लेने से रोकते हैं, वहां इस तरह के एंजॉयमेंट से रोकते हैं आप। 5 लोग हैं, ऐसा जानबूझ के रोकते हैं क्रिमिनल फोर्स के साथ, तो ये भी कॉमन ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल असेंबली हो सकती है। आखिरी हो गया, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लाइक लीगली बाउंड टू डू। व्यक्ति को कहते हैं ये काम आपको करना ही पड़ेगा। जमा हो गए कहीं पर 5 लोग, 10 लोग, 7 लोग, 8 लोग जमा हो गए पुलिस स्टेशन में और कहा कि ये आदमी के आपने बंद कर रखा है, इसको जबरदस्ती छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मारपीट करेंगे आपको। ये भी हो गया, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू दैट, और आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं ये करना होगा आपको जबरदस्ती। तो ऐसे मामलों में कॉमन ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार का हो गया। कहां लिखा है? 189 ऑफ भारतीय न्याय संहिता या 141 ऑफ आईपीसी। ये जब कॉमन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो और 5 लोग उसमें शामिल हो, 5 लोग शामिल हो, तो दिस बिकम्स अनलॉफुल असेंबली। और इसमें कह दिया गया है कि इनिशियली, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इनिशियली कोई असेंबली अनलॉफुल असेंबली नहीं है, बाद में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 6-7 लोग पिक्चर देखने गए, पिक्चर देखने अंदर घुसे, कोई दिक्कत नहीं है, टिकट लेके घुसे, हाँ टिकट लेके घुसे, और वहां कोई आ गया, भाई चलो पॉपकॉर्न खरीद लो, कुछ और खरीद लो, आपने उसको कहा कि पॉपकॉर्न फ्री में देना पड़ेगा, जबरदस्ती कह रहे हैं आप। अब आप 5 लोग अगर ऐसा कहते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये अनलॉफुल असेंबली हो गई। पहले तो अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, अपनी यूनिवर्सिटी से निकले 5 लोग, 8 लोग, 9 लोग घूमने के लिए निकले, अभी तो अनलॉफुल असेंबली नहीं है, अभी तो फंडामेंटल राइट है आपका असेंबली बनाने का भी, कहीं भी जाने का भी, और घूम निकले और रास्ते में जो है किसी के साथ कोई बदतमीजी करने लगे, कोई आपके दोस्त में से कोई किसी को गलत शब्द कहने लगे और उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल करने लगे, बिना किसी की, उसकी किसी दुकान वाले के या किसी होटल वाले ने उसने लिखा है कि अभी भाई अब ये दुकान बंद हो गई है, होटल बंद हो रहा है, लेट हो रहा है, आप मत घुसिए, आप अंदर जबरदस्ती घुसने लगे, हमें खाना खाना है भाई, तो आप ट्रेसपास कर रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं। शुरू में तो असेंबली अनलॉफुल नहीं है, पर बाद में असेंबली अनलॉफुल हो गई, ये अनलॉफुल असेंबली है। पनिशमेंट है वो है 6 मंथ तक का कारावास, 6 मंथ, ज्यादा नहीं है, 6 मंथ तक। केवल फाइन भी हो सकता है, पर ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर आपको, अगर थोड़ा सा गलती हो गई है, आपने क्षमा मांग लिया, हो सकता है कोर्ट आपको छोड़ दे, बोले ठीक है खाली फाइन होगा। ये कॉग्निजेबल है लेकिन बेलेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन बेलेबल है, बेलेबल होने का मतलब है कि पुलिस थाने से बेल मिल जाएगी आपको। अब इसमें ध्यान रखना है
इसमें ध्यान रखना है that become member of unlawful assembly. It is very important now. Member of unlawful assembly. Now there are 5-6 people. आप उनसे मिले, आपने पूछा भाई क्या कर रहे हो आप लोग? बोले हम लोग तो प्लान कर रहे हैं एक लूट करने का। आप भी उनके साथ शामिल हो गए। नाउ यू बिकम ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। सो शुरू में आप असेंबली बनी हुई है, यू हैव योरसेल्फ बिकम मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। बोले हम प्लान कर रहे हैं, चलेंगे जाएंगे एक जगह चेन लूटेंगे, चलो हमारी जरा गाड़ी से वहां तक छोड़ दो। यू हैव बिकम अनलॉफुल मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली जब आपने कहा कि ठीक है मेरी गाड़ी में आ जाओ। तो ये ध्यान रखना है अनलॉफुल असेंबली। सो यू बिकम ए अनलॉफुल असेंबली मेंबर। अगर आपने कहा चलो खाली देखेंगे कैसा लगता है, हम भाई कुछ करेंगे नहीं, खाली देखेंगे दूर से कैसा लगता है, कैसे आप लूटते हो, नो। जैसे ही आपको पता है कि अनलॉफुल असेंबली है, आप उनके साथ हो लिए, यू बिकेम ए अनलॉफुल असेंबली मेंबर। आपको तुरंत वहां से हट जाना है। नहीं हटेंगे, आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आप उनके साथ हो गए हैं मजे लेने के लिए, यू आर ऑल्सो ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये 189 क्लॉज 2 में है। अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अरूप भुइया वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी। उसमें कहा है कि कोई व्यक्ति जो टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर बन जाता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जानते हुए, अनजाने में नहीं, जानते हुए बन जाता है, भले वो कुछ ना करे, वो कुछ भी ना करे, लेकिन अगर वो मेंबर है, वो जानता है व्हाट्सएप ग्रुप में है और कुछ नहीं करता है, फिर भी वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, उसको पनिशमेंट मिलेगी। सिमिलरली ये प्रोविजन में 189 में बहुत सारे प्रोविजन है अनलॉफुल असेंबली में। कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके लिए ही विल बी लाइबल इवन इफ ही हैज नॉट डन इट इंटेंशनली। ध्यान रखिए, अनलॉफुल असेंबली बहुत खतरनाक होती है। मान लीजिए कि एक जुलूस चला जा रहा है, कुछ लोग चले जा रहे हैं, उसमें कोई डंडा लिए है, लाठी लिए है, someone has taken some instrument, some deadly instrument, or it seems that they are going to commit something. You say that no, I will not commit any offense, I will only see, and you became part of that. आप भी उनके साथ जुलूस में शामिल हो गए। The moment you became a part of that, ताली बजा दी आपने, you have also started making slogans, आज तो बदला लेके रहेंगे, छोड़ना नहीं है, वगैरह वगैरह, then you became a part of unlawful assembly. You do not want to harm anyone, let me tell you, but you are an unlawful assembly part. And these people have deadly arms. आपको पता है कोई बंदूक लिए है, कोई लोहा लिए है, कोई कुछ लिए है, and they can kill anyone. Suddenly one of them uses his rod and kills a person. You do not want to kill, but because you are a member of unlawful assembly, you will also be liable under murder. Be very careful. That is what section 189 and other says. 90 indeed. 190 says, if an offence is committed by any member of unlawful assembly in prosecution of common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offence is a member of same assembly is guilty of that offence. आप मारना नहीं चाहते थे, आप वायलेंस नहीं करना चाहते थे, बट यू बिकेम द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। आप उनके साथ इंकलाब जिंदाबाद करने लगे, आपने देखा कि ऑलरेडी उनके पास बहुत हथियार है, देन यू हैड द नॉलेज, एंड देयरफॉर इफ मर्डर इज कमिटेड will be prosecuted for murder. So be very careful. Then other section is riot. Riot का मतलब होता है
whenever force or violence is used by unlawful assembly. So unlawful assembly may remain peaceful but still be unlawful. जैसे जबरदस्ती किसी के घर में घुस गए आपने कुछ वायलेंस नहीं किया लेकिन जबरदस्ती घर में घुस गए, हट नहीं रहे हैं, पीसफुल है आप, बट यू वायलेंस और फोर्स unlawful assembly in prosecution of common object, then it is known as riot. Then another section is 192. 91 चेंज हुआ है क्योंकि जो पनिशमेंट है इट इज एक्सटेंड टू 5 years और फाइन और विद बोथ पनिशमेंट हैज चेंज्ड. 192 है wantonly गिविंग प्रोवोकेशन. तो प्रोवोक करते हैं आप किसी को. आई एम स्किपिंग दिस पार्ट. 93 is very important. Liability of owner occupier of land on which an unlawful assembly or riot takes place. हमारा घर है या हमारा मान लीजिए हमारी जमीन है. आई हैव ए लैंड एंड आई हैव अलाउड अनलॉफुल असेंबली टू कम देयर. देन 193 गिव्स दैट आई शैल बी ऑल्सो लाइबल. भले ही मैंने कुछ नहीं किया, भले ही मैं दूर में हूं, then I will be liable for that. 194 is affray. Affray means when two or more person fight in a public place or public peace, then it is known as affray. So affray can be done by 2 persons. 5 persons are not required. Number 1, आप राइट से अंतर करिए इसको. Differentiate from riot. Affray means there are only 2 persons, it is sufficient. 3 sufficient, 4 sufficient. But for the purpose of rioting, unlawful assembly is required. That means at least 5 persons. Rioting need 5 persons. Affray need only 2 persons. Affray can be in public place. Only public place, not private place. But rioting can be private place or can be at public place. Both places, anywhere. This is the second difference. In both differences you are writing. Writing you need minimum 5%. Affray you need minimum 2%. Writing can be at private place, public place, anywhere, but affray is only at public place. For writing, common object is essential, but for affray, only disturbance of public peace is essential. So this is the difference between affray. Now in case of affray, the punishment is maximum 1 month. Just 1 month punishment or fine. In case of rioting, when riot is committed, then the punishment may be 2 years. Up to 2 years the punishment can be there. This is also a difference. And if you are with arm, then it will be 5 years. So in case of affray, the third difference is regarding punishment. That in affray the punishment is 1 month. In case, so 1 month punishment. These are 3 differences. Let me give you 3 differences again. Rioting, for the purpose of riot, minimum 5 persons are required. Affray, only 2 persons are sufficient. Riot can be in private or public, both places. Affray, only public place. Third is riot. For the purpose of riot, there must be common object. A common object defined under 189. 5 objects are there. But in case of affray, there it should be public peace, disturbance of public peace. And fourth difference is regarding punishment. That in case of riot, punishment can be 2 years, up to 2 years. Or if you have arms, then it can be 5 years. While in case of affray,
the punishment can be maximum 1 month. Then 195 is assaulting or obstructing public servant when suppressing riot. Public servant मतलब पुलिस हो गई. When police is suppressing riot, कहीं 5 लोग हैं and they are committing riot, मीन्स वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के परसुएशन में, एंड पब्लिक सर्वेंट इज ट्राइंग टू सप्रेस द राइट, और उस पब्लिक सर्वेंट को मारपीट करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ, तो देन द पनिशमेंट एक्सटेंड्स टू 3 years. फाइन भी है इसमें, जिस पे लिख दिया है नॉट लेस देन 25,000 रुपीज. ये बदला गया है, दिस पनिशमेंट इज चेंज्ड. Then 196, promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place, birth, residence, language. ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए. Why? Because we all are part of various WhatsApp group. WhatsApp ग्रुप में बहुत आता है, ये धर्म के लोग ऐसा कर दिए, वो धर्म के लोग ऐसा कर दिए, ये जाति के लोग ऐसा कर दिए, ये प्लेस के लोग ऐसा कर दिए, भाषा के लोग ऐसा कर दिए. This can bring us in a big soup. 196. So अगर आप ऐसी बात करते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो एनिमिटी को बढ़ा रहा है, दुश्मनी को बढ़ा रहा है, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे रेस के नाम पर, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, ये आदमी तो नॉर्थ ईस्ट का है, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. या ये हिंदू है या मुसलमान है, ऐसा करते हैं, इस आधार पे कोई बात कहते हैं, या ये आदमी तमिलनाडु का है, ये आदमी कर्नाटक का कन्नड़ है, या महाराष्ट्र में कभी कभी कह देते हैं कि जो लोग बिहार से आए हैं बिहारी लोग हैं, ऐसा कर, ये सब 196 में ऑफेंस है, और उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है. आपको बताओ, सबके खिलाफ मामला दर्ज होता है. तो जब भी ऐसा करते हैं तो ये अपराध होगा. आप देख रहे हैं इसमें चेंजेस भी हुए हैं. 196 में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वर्ड हैज बीन एडेड. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी करते हैं, व्हाट्सएप से भी करते हैं, तो ये अपराध है. और इस अपराध के लिए जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट अप टू 3 years पनिशमेंट है. और अगर किसी रिलीजियस प्लेस पे ऐसा करते हैं तो 5 years तक पनिशमेंट है. लास्टली 197 है. 197 अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन कुछ करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में है, उसमें रिलीजन का यूज करते हैं, उसमें रेस का यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं, रीजनल ग्रुप का यूज करते हैं, कास्ट का यूज करते हैं, कम्युनिटी का यूज करते हैं, और हम कह देते हैं कि ये तो गद्दार है, ये फला धर्म का ये गद्दार है, ऐसी बात कह देते हैं. तो ये सब 197 में ऑफेंस है. आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि 197 में एक डी क्लॉज भी आया है, इसको अभी इस बार ऐड किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर देश की एकता अखंडता के खिलाफ कोई झूठी इंफॉर्मेशन कोई भेजता है, जैसे कह देता है कि आर्मी ने वहां पर कई लोगों को मार डाला है, लेकिन आर्मी नहीं मारा है, गलत जानकारी है ये, तो ये सब मामलों में यहाँ अपराध हो सकता है. तो अब टाइम भी आपका हो गया है, इसलिए मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फिर से कि 2 लेक्चर आपके साथ हमने अटेंड किया है, और